Good morning everyone. Here your Miss Rupa Bajpayee. In our today's class, we are going to complete the lesson 4's word problems. Okay? What thing we are going to do is word problems. तो आज हमें word problems complete कर रहे हैं. And here we have the first question. And before this, I'm giving you one more information, that is कि आप सभी को word problems अपने नोटबुक्स में करना है. ठीक है, कहाँ करना है? मैथ्स नोटबुक में. मैथ्स का जो आपका कॉपी होता है उसमें आपको करना है. ठीक है, आप इसको मैथ्स नोटबुक में करेंगे. एंड जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको इसी तरह से इसे सॉल्व करना चाहिए. दैट इज़ द करेक्ट मेथड, बिकॉज सम ऑफ यू आर नॉट फॉलोइंग इट. लाइक you are just writing the digits in word problems and thinking that this is it. No, that's not. In word problems you need to explain the things, then answer should be proper in a sentence. ठीक है, जब आप word problem solve करते हो तो उसे एक proper manner में solve करना चाहिए. उसका answer proper sentence में होना चाहिए. उसको आपको explain करना चाहिए. That is what word problems are. And if you find the problems that how to make all these sentences, then I many time told you, because before also we have completed word problems, so there I also told you that how you can make sentences from the question heading. ओके, ये जो आपको क्वेश्चन हेडिंग दिया गया होता है इसमें से ही आपको ये सेंटेंसेस बनाने होते हैं. व्हाट यू नीड टू डू प्रैक्टिस अबाउट इज रीडिंग. ठीक है, जितना ज़्यादा आप अच्छे से उसे रीड करते हैं, यू आर अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ द सम. जब आप उसकी डिमांड, आप क्वेश्चन को समझने लगते हैं, देन यू कैन मेक द सेंटेंसेस बाय योर ओन. सो व्हाट यू नीड टू डू इज रीड मोर. ठीक है, उसको ज़्यादा रीड कीजिए आप. नॉट ओनली दीज मैथ्स वर्ड प्रॉब्लम्स, in other subjects also like EVS, English, Hindi, all the subjects you need to read more to understand what the question is saying. Then only you can solve any sum in a correct manner. So here the first one, Mr. Singh has 6 apples. Mr. Singh has 6 apples. It means कि Mr. Singh के पास 6 apples हैं. क्या है? मिस्टर सिंह के पास 6 एप्पल्स हैं. दिस हैज़ वर्ड इज गिवन ना, दिस मीन्स दैट द थिंग बिलोंग्स टू द पर्सन, कि उनके पास है. लाइक आई सेड दैट आई हैव अ मास्क. I have a mask. That it means that this mask is mine. It belongs to me. I have a pencil. मेरे पास एक पेंसिल है. So the things is belonging to me. ये मुझसे belong करती है. So Mr. Singh has 6 apple. Mr. Singh के पास 6 apples हैं. एंड ग्रामेटिकली इसको मोर आपके इंग्लिश में आपको सब्जेक्ट वाइज वहाँ पर भी एक्सप्लेन किया जाएगा. हियर आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द मैथमेटिक्स टर्म्स. ठीक है, सो आप इसको थोड़ा जल्दी समझ जाएंगे. नाउ मिस्टर मानी हैज़ 5 मैंगोज. मिस्टर मानी हैज़ 5 मैंगोज. हाउ मैनी फ्रूट्स डू दे हैव? Okay, there your sum is. So you need to understand what the demand of the question is first of all. So you can get this by the last line of the question, that what is it about. वो क्या कहना चाह रहा है आपसे, क्या आप उस क्वेश्चन से आप डिमांड है आपकी. So that all you will get through the क्वेश्चन हेडिंग ओनली. सो नीड टू रीड इट मोर एंड प्रॉपरली. ठीक है, आप स्लोली उसे रीड कीजिए एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई कीजिए उसे समझने का, दैट व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग द सम. So now, as I told you before how to solve, so all the time you should write these headings like I have given to you here: solution, and then explanation of the sum, and then the answer within this, which should be in a sentence. Understood? Now here you have the solution. So Mr. Singh has apples. Here also this is given, Mr. Singh has 6 apples. So what I need to do, that I need to write the digits properly in a place. मैं क्या चाहती हूँ कि मैं इन digits को properly अलग से लिखूँ. That is why I wrote the sentence properly, that Mr. Singh has apples is equal to 6. क्योंकि Mr. Singh के पास कितने apples हैं? 6. Now Mr. Mani has
5 mangoes. So I also wrote it in a sentence. Like Mr. Mani has mangoes and equal to 5. And you know what I all the time told you to give here some space. Why? For this sign, the plus sign, which is very important to write. So here I have given to you this plus sign, and then you can add them, add the digits. Now digits, addition in a digits, now it's very simple for you all because we have completed it many more times before. हम इसे बहुत बार पहले भी complete कर चुके हैं. So you can add them very easily. Now you got the answer. One more time I'm telling to you do. Like there is 6 already given. ठीक है. Now what you can do is the downside number which is given 5. Take out the finger ऑफ दिस वन नंबर. ठीक है, जैसे यहाँ पर 5 दिया गया है तो आप 5 फिंगर्स को आउट कीजिए. लाइक आई टुक माई 5 फिंगर्स आउट एंड देन आफ्टर 6 आई एम गोइंग टू डू फॉरवर्ड काउंटिंग. मतलब मैं इस 6 के बाद की फॉरवर्ड काउंटिंग करूँगी. कब तक, कहाँ तक? टिल दीज 5 नंबर विच आई हैव टेकन आउट. Like I have taken these 5 fingers out, I will just do forward counting after 6. मैं सिर्फ 6 के बाद का forward counting करूँगी till these 5 number to get my answer. I'm starting. So here after 6 there will be 7, 8, 9, 10, 11. तो मैंने क्या किया? I have not drawn the lines. मैंने लाइंस ड्रॉ करके से सॉल्व नहीं किया. मैंने यहाँ पर 6 फिंगर्स और 5 फिंगर्स, इतने सारे फिंगर्स को भी यूज़ नहीं किया. व्हाट आई डिड इज़ फॉरवर्ड काउंटिंग. मैंने क्या किया है यहाँ पर? फॉरवर्ड काउंटिंग की है. मैंने कैसे फॉरवर्ड काउंटिंग की है? सो आफ्टर 6 के बाद जो भी नंबर आया है मैंने उतना फॉरवर्ड काउंटिंग किया. ठीक है, जैसे यहाँ नीचे 5 दिया गया था, आई टुक माई 5 फिंगर्स आउट फॉर इट एंड देन आफ्टर 6 आई डिड फॉरवर्ड काउंटिंग. मैंने 6 के बाद फॉरवर्ड काउंटिंग की. आफ्टर 6, 7, 8, 9, 10, 11. सो माई आंसर विच केम इज 11 एंड देन लेटर आई रोट दिस सेंटेंस आंसर. ठीक है, सो आपको ये आंसर का सेंटेंस भी क्वेश्चन से ही मिल जाता है. आपको सिर्फ एक चीज़ देखनी है जहाँ पर लिखा होता है ये हाउ मैनी वर्ड. ठीक है, आप हाउ मैनी वर्ड्स के बाद जो सेंटेंस है उसे यहाँ पर यूज़ कर दीजिए फॉर आंसर. सो दैट इज़ हाउ यू कैन मेक योर सेंटेंस. ठीक है, आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगा और आपको सेंटेंस में आंसर देना आना चाहिए. नाउ हाउ मैनी फ्रूट्स डू दे हैव? सो 18 फ्रूट्स दे हैव. आप यहाँ पर डू डिड वर्ड्स भी आते हैं अलग अलग सम्स में. आपको डू वर्ड डिड वर्ड आएगा, बट you just remove this and write it 11 fruits they have. Fruits they have. ठीक है. Now next one is, so the next sum is 8 birds were sitting on a tree. 8 birds were sitting on a tree. 8 birds कहाँ पर बैठे? Sitting means क्या होता है? बैठना. Sitting means बैठा. तो trees पर 8 birds बैठे हुए थे. 8 birds were sitting, बैठे हुए थे. कहाँ पर? ट्रीज पर, ऑन अ ट्री. सो 5 more joined them. अब ज्वाइन करना मीन्स मतलब किसी को ज्वाइन करना, मतलब उनके साथ जाना. ठीक है, उनके साथ मिक्सअप हो जाना. सो 5 more joined them. 5 more birds ने उनको ज्वाइन किया, उनके साथ वो बैठे. हाउ मैनी birds आर नाउ सिटिंग ऑन अ ट्री? हाउ मैनी वर्ड्स आर नाउ सिटिंग ऑन अ ट्री? अब ट्री पर कितने बर्ड्स बैठे हुए हैं? सो आई रोट इट हियर फर्स्ट सॉल्यूशन, देन वर्ड्स सिटिंग ऑन अ ट्री. बर्ड्स सिटिंग ऑन अ ट्री, बर्ड्स जो कहाँ पर? ट्री पर बैठे हुए हैं, दैट इज 8. एंड बर्ड्स ज्वाइंड देम, बर्ड्स जिन्होंने उन्हें ज्वाइन किया, 5. So 8 plus 5. I will just take my 5 fingers out and after 8 I will do forward counting. मैं 5 fingers निकाला मैंने and then 8 के बाद मैंने forward counting किया. So 9, 10, 11, 12, 13. I got my answer which is 13. Here I wrote the sentence. मैंने यहाँ पर sentence लिखा है. So answer I gave 13 words are now sitting on a tree. अब मुझे ये सेंटेंस अगर नहीं बनता तो मैं कहाँ से लूँगी? आई विल गो टू द क्वेश्चन अगेन, आई विल फाइंड द वर्ड हाउ मैनी. मैं क्वेश्चन पर जाती हूँ, मैंने हाउ मैनी वर्ड देखा और इसके बाद का जो सेंटेंस है उसे मैंने यहाँ पर लिखा.
आप देखोगे हाउ मैनी की जगह पर मैंने यहाँ 13 मेरा आंसर पुट किया। बर्ड्स आर नाउ सिटिंग ऑन अ ट्री, बर्ड्स आर नाउ सिटिंग ऑन अ ट्री एंड आई गॉट द आंसर इन अ सेंटेंस। ठीक है, तो इतना ईजी होगा ये। ठीक है, ईजिली हमने कर लिया। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। सो हियर यू हैव इन वन फ्लावर वास। अब ये फ्लावर वास क्या होता है, आप सभी के घर में आपने देखे होंगे, एक वास होता है, एक पॉट होता है जिसमें फ्लावर्स होते हैं ना, दैट इज फ्लावर वास। तो इन वन फ्लावर वास देयर वर 9 फ्लावर्स, मतलब एक फ्लावर वास में, एक फ्लावर पॉट में 9 फ्लावर्स थे। ठीक है, इन अनदर वास, एक दूसरे वास में, अनदर वर्ड आता है जहाँ, उसका मीन्स क्या हो जाता है, एक दूसरे पॉट में या दूसरे वास में। इन अनदर वास देयर वर 6 फ्लावर, एक दूसरा वास जो था उसमें 6 फ्लावर्स थे। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स। अब आपको टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स देखना है, कहीं पर भी आपको टोटल वर्ड आए ना, देन टोटल रिलेट टू द एडिशन। टोटल वर्ड्स कहीं आता है, इट मीन्स अब वहाँ क्या करना है, आपको एडिशन करना है। ठीक है, सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स। सॉल्यूशन आई रोट हियर एज प्रॉपरली यू कैन सी सॉल्यूशन। देन इन वन फ्लावर वास, देखिए मैंने कहाँ से इस सेंटेंस को लिया, आई गॉट दिस। सो in one flower vase, here is this same in one flower vase. अब there is written there were 9 flowers, तो ये सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो जाता है यहाँ पर मेरे लिए। ठीक है, सो दैट इज आई जस्ट रोट हियर इन वन फ्लावर वास इज इक्वल टू 9 फ्लावर्स, मतलब एक फ्लावर वास में कितने थे, 9 फ्लावर्स थे। इवन यू कैन राइट इट एज सिमिलर टू द सेंटेंस, बट उससे भी आपका ये जो लाइन होता है ये फुलफिल हो जाएगा, मतलब पूरा उसको वो पूरा फिल हो जाएगा। दैट इज वाई आई जस्ट चोज द वर्ड्स विच आर गोइंग टू फिट विद दिस। ओके, और वो एक ही लाइन में फिट हो जाए। सो इन वन फ्लावर वास इक्वल टू 9 फ्लावर्स, इन अनदर वास, this I also took from the question sentence, in another vase is equal to 6 flowers. ठीक है, there were words you can add, अब वो अगर add भी करोगे that is correct, वो गलत नहीं होगा। ठीक है, then always leave here bit place for this plus sign, write it properly on दिस प्लेस। ठीक है, मैंने आप लोगों को चेक किया है, तो कुछ लोग यहाँ मिडिल में लगाते हैं, बीच में लगाते हैं, दैट इज़ इनकरेक्ट, वो सही नहीं है। सो राइट इट डाउन साइड, ओके, इन फ्रंट ऑफ दिस नंबर। सो हियर आई एम गोइंग टू ऐड दिस 6 in 9। अब मैं कैसे करूँगी, 6 के लिए मैंने बताया था आपको, अगर आपको फिंगर्स में प्रॉब्लम होता है कि फिंगर्स हमारे पास कम पड़ जाते हैं कभी कभी, जो बिग नंबर होते हैं थोड़े से, तो हम इन पोर्स को यूज़ कर सकते हैं ना। सो फॉर दिस 6 आई एम गोना टेक आउट माई 6 पोर्स, 1 2 3 4 5 6। I got my 6 pores out. Now after 9 I will do forward counting. So after 9 there will be 10, 11, 12, 13, 14, 15. Got my answer? 15. यहाँ तक मुझे क्या मिला? 15. So this is my answer. Now answer is equal to 15 is the total number of flower. और आप देखेंगे यहाँ पर पहले तक हमें क्या वर्ड मैं ढूंढती थी, हाउ मैनी वर्ड मैं जल्दी से ढूंढती थी अपना आंसर लिखने के लिए, बट इन सम क्वेश्चंस यू विल गेट दिस वर्ड फाइंड। तो आप एक चीज़ को बहुत अच्छे से याद कर लो, या तो फाइंड वर्ड अदरवाइज हाउ मैनी। ठीक है, हाउ मैनी, इन 2 वर्ड्स को आप हमेशा क्वेश्चन सेंटेंस में देखिए और उसके बाद से अपना आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कीजिए, तो आपका सेंटेंस भी आप बना पाएंगे विदाउट टेकिंग एनीवन्स हेल्प। इंपॉर्टेंट थिंग इज विदाउट टेकिंग एनीवन्स हेल्प यू आर डूइंग दिस, दैट इज मैटर्स फॉर मी। ठीक है, सो देयर विल बी नो चीटिंग एंड हाउ एवर यू आर डूइंग जस्ट विदाउट डोंट टेक एनीवन्स हेल्प एंड डू इट। ठीक है, अदरवाइज इफ यू विल टेक ऑल द टाइम हेल्प्स ऑफ अदर देन यू विल बिकम यूज टू एफ, मतलब आपको हमेशा फिर सबका हेल्प चाहिए पड़ेगा कि मुझे करवा दो। दैट इज़ नॉट करेक्ट, आपको खुद से करना होगा। दैट इज़ वाई आई एम ऑल द टाइम ट्राइंग टू गिव यू द हिंट्स कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। सो हियर आप क्वेश्चन हेडिंग में देखेंगे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स।
फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स। तो हमने फाइंड वर्ड देखा, अब इस फाइंड वर्ड के बाद से हम आंसर, इसके जगह पे मैंने अपना 15 आंसर लिखा। इज़ द टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स, बस मैंने 15 इज़ द टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स, ये मुझे क्वेश्चन से ही मिल गया। ठीक है, मिल गया ना क्वेश्चन से मुझे। तो इस तरह से हमने ये कंप्लीट किया। नाउ नेक्स्ट अप इज 6 books were kept on the table and 6 were lying under the table. Find the total number of books. Find the total number of books. 6 were kept on the table, मतलब इसका मतलब होगा कि 6 बुक्स जो थे वो टेबल के ऊपर रखे हुए थे। kept on the table, on the table मतलब टेबल पर रखे हुए थे। and 6 were lying under the table. 6 were lying under the table. अंडर का मतलब होता है नीचे, ठीक है, अंडर का मतलब होता है नीचे। तो 6 were lying under the table, जो 6 बुक्स थे वो टेबल के नीचे पड़ी हुई थी। ठीक है, lying under the table मतलब उसके नीचे पड़ी हुई थी। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स। अब हमें क्या देखना है, यहाँ आपको देखोगे फिर से फाइंड वर्ड आया है, तो आपको आंसर यहाँ से स्टार्ट करना है लिखना। जब आप क्वेश्चन को रीड करते हैं आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि यहाँ से मुझे आंसर राइट करने के लिए सेंटेंस है। ठीक है, सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स। सो टोटल वर्ड आया है यहाँ पर, फाइंड वर्ड आया है। फाइंड वर्ड का मीन्स यहाँ से हम आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे, और टोटल का मीन्स है कि हमें यहाँ पे एडिशन करना है। सो रोट द सॉल्यूशन हेडिंग, देन kept on the table इक्वल टू 6 बुक्स। kept on the table, kept on the table इक्वल टू 6 बुक्स। इसकी जगह पे आप ऐसा भी कर सकते थे, बुक्स kept on the table, बुक्स वर kept on the table इक्वल टू 6। आप इस तरह से भी लिख सकते थे, बुक्स वर kept on the table इक्वल टू 6। मैंने सिर्फ इसलिए इसको इस तरह किया कि सेंटेंस थोड़ा सा छोटा हो जाए। ठीक है, सो बुक्स वर kept on the table भी अगर आप करते दैट विल बी करेक्ट, वो भी करेक्ट होगा। 6 वर lying अंडर द टेबल, तो आप लिख सकते थे lying अंडर द टेबल, तो मैंने भी यहाँ लिखा lying अंडर द टेबल इक्वल टू 6 बुक्स। नाउ नीड टू ऐड 6 + 6, सो व्हाट वी विल डू, फॉरवर्ड काउंटिंग टू ऐड, and then the answer heading, find the total number of books. So in place of this find word I wrote my answer, मैंने अपना आंसर लिखा इस find word की जगह पे, इस वर्ड को मैंने ऐड किया, एंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स, द टोटल नंबर ऑफ बुक्स, मैंने इसको वहाँ से सेंटेंस को पुट कर दिया, एंड आई गोट माई आंसर इन अ सेंटेंस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज 1 jar contained। कंटेन्ड का मतलब उसमें रखा होता है। जैसे अगर मैं कहूँ इन अ जूस, अ जूस कंटेन शुगर, अ जूस ध्यान से सुनना, अ जूस कंटेन्ड शुगर, एक जूस जो है उसमें शुगर कंटेन है, मतलब उसमें शुगर डली हुई है, उसमें अंदर शुगर भी है। कंटेन मतलब उसके अंदर है। द थिंग इज इंक्लूडेड इन द थिंग, मतलब वो उसके अंदर है। सो 1 jar कंटेन्ड 11 स्वीट, मतलब एक जार के अंदर, ठीक है, एक जार के अंदर क्या है, 11 स्वीट्स कंटेन्ड है, मतलब उसके अंदर रखी हुई हैं। 1 jar कंटेन्ड 11 स्वीट, एक जार में 11 स्वीट्स हैं। एंड अनदर कंटेन्ड 8 स्वीट्स, और दूसरे, अनदर का मतलब मैंने क्या बताया है, एक दूसरा, ठीक है, अनदर कंटेन्ड 8 स्वीट्स, एक दूसरे जार में 8 स्वीट्स, वहाँ पर 8 स्वीट्स हैं। हाउ मैनी स्वीट्स वर देयर ऑल टुगेदर, हाउ मैनी स्वीट्स वर देयर ऑल टुगेदर। ना जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन हेडिंग पढ़ा, मुझे सबसे पहले क्या पता चला, यहाँ पे हाउ मैनी वर्ड है, यहाँ से मुझे आंसर पुट करना है। स्वीट्स वर देयर ऑल टुगेदर, अब ये जो वर्ड आया है ऑल टुगेदर, ठीक है, ये जो वर्ड आया है ऑल टुगेदर, दिस ऑल टुगेदर मीन्स ऑल्सो एडिशन। कहीं पर भी आपको ऑल टुगेदर वर्ड आए, इसका मतलब है वहाँ क्या है, एडिशन, ठीक है, आपको एडिशन करना है। सो नाउ हियर इज, आई रोट हियर सोल्यूशन। इन 1 jar स्वीट्स इक्वल टू, in 1 jar I just added the word in, 1 jar contained, you can write 1 jar contained equal to 11 sweet, another jar contained equal to 8 sweets। आप इस तरह से यहाँ से सेम
सेम वर्ड्स भी लिख सकते हैं. अनदर कंटेंट 8 स्वीट्स, so आप लिख सकते थे अनदर कंटेंट इक्वल टू 8 स्वीट्स. आई रोट इट लाइक दिस, so you can write it. In one jar sweets equal to 11, in another jar sweets equal to 8. I added them, got my answer which is 19, and then I wrote the answer. 9 sweets were there all together. That I got from the question. How many sweets were there all together? तो मैंने यहाँ ये जो how many words है उसके जगह पे 19 को पुट किया एंड देन स्वीट्स वर देयर ऑल टुगेदर, स्वीट्स वर देयर ऑल टुगेदर. मैंने इस तरह से सेंटेंस बना दिया. तो कितना ईजी होता है एक सम को एक प्रॉपर मैनर में लिखना. ठीक है, बहुत ईजी होता है. तो आप सभी कर सकते हैं. ठीक है, आफ्टर वॉचिंग द वीडियो यू कैन डू इट बाय योर ओन. आपको खुद कर सकते हैं एंड यू विल डू इट बाय योर ओन. आप खुद से करेंगे. नाउ नेक्स्ट, विद्या परचेस्ड 8 बलून्स. विद्या परचेस्ड, परचेस का मीन्स होता है खरीदना. ठीक है, परचेस्ड का मीन्स क्या होता है? खरीदना. सो विद्या परचेस्ड 7 बलून्स. विद्या ने क्या परचेज किया? उसने 7 बलून्स खरीदे. एंड हर सिस्टर शीला. हर सिस्टर शीला मतलब विद्या की सिस्टर. हर सिस्टर मीन्स हर वर्ड्स बिलोंग टू दिस विद्या. विद्या की सिस्टर शीला परचेस्ड 6 बलून्स. उसने कितने परचेज किए बलून? 6 बलून्स. हाउ मैनी बलून्स डिड द 2 सिस्टर परचेस्ड ऑल टुगेदर. ठीक है, डिड द 2 सिस्टर परचेस्ड ऑल टुगेदर. उन दोनों सिस्टर्स ने टोटल कितने बलून्स खरीदे? हाउ मैनी बलून्स डिड द 2 सिस्टर परचेस्ड ऑल टुगेदर. So the answer, I wrote the solution heading here. Vidya purchased balloons. Vidya purchased balloons equal to 7. Vidya purchased balloon equal to 7. क्या है कि नंबर्स हमें डिजिट्स जो होते हैं वो हमें अलग साइड से लिखने चाहिए क्योंकि ये अलग से दिखना चाहिए दैट यू डिड इट लाइक दिस. ठीक है, दैट इज वाई आई रोट दिस वर्ड बलून बिफोर द नंबर. विद्या परचेस्ड बलून. विद्या परचेस्ड बलून इक्वल टू 7. उसने 7 खरीदे. शीला परचेस्ड बलून. शीला, सॉरी यहाँ शीता आ गया है बट इट्स शीला. ठीक है, शीला परचेस्ड बलून इक्वल टू 6. फिर आई एडेड देम विद द मेथड ऑफ फॉरवर्ड काउंटिंग. मैंने फॉरवर्ड काउंटिंग से इसे ऐड किया. देन आई रोट द आंसर. 13 बलून्स द 2 सिस्टर परचेस्ड ऑल टुगेदर. यहाँ पर आपको दिखेगा हाउ मैनी बलून्स डिड द 2 सिस्टर परचेस्ड ऑल टुगेदर. सो इन प्लेस ऑफ दिस हाउ मैनी वर्ड आई पुट द आंसर 13 balloons. Then did words I removed the 2 sister purchased all together. मैंने यहाँ से आपको अगर did do words आए उनको रिमूव कर देना. ठीक है, क्योंकि उनको लगाने के बाद अगर आप did word यूज़ करते हो तो उसके लिए थोड़ा सा सेंटेंस को और चेंज करना पड़ता है. तो उससे अच्छा कि आप उसे ही रिमूव कर दीजिए. अभी के लिए आप इतना सीखिए, इतना ही लर्न कर लीजिए कि अभी आपको सेंटेंस के इस तरह से बना सकते हैं. ठीक है, एंड लेटर ऑन इन योर above classes you will learn how to make the proper sentences. ठीक है, अभी आप इसको इतना तो करना सीखिए. Now here I am finishing my today's class. Take care of yourself everyone. Bye bye.